am Dr. Meenu Chan, Associate Professor, Head Department of Economics, DAV College for Girls, Yamuna. Today the topic is price elasticity of demand, its degrees, measurement, determinants, and importance. Today we will start with law of demand. What does law of demand state? Law of demand states that other things being equal, there is inverse relationship between price and quantity demanded. When price is high, quantity demanded is less. When price is low, quantity demanded is high. लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि जब अन्य बातें समान रहती हैं तो कीमत और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है. जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है. लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेल हाउ मच चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग दिस मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मांग के नियम से ये नहीं पता चलता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा. लॉ ऑफ डिमांड shows the direction and it is qualitative concept. मांग का नियम सिर्फ डायरेक्शन बताता है और ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है. इन ऑर्डर टू नो हाउ मच चेंज विल ब्रिंग this much change in quantity demanded, we have to study the concept of elasticity of demand. Now, what is elasticity of demand? Elasticity of demand is the responsiveness of demand to the price of commodity, income of consumer, and price of related goods. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस को बताती है. मांग कितनी सेंसिटिव है जब गुड की प्राइस में चेंज हो रहा है, इनकम कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है और रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज हो रहा है. इट शोज how much demand changes with change in price of commodity, income, and price of related goods. Elasticity of demand क्या है? It is a ratio है. It is a percentage change and it is a quantitative concept है. Now we will define elasticity of demand. Dooley defines the elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, price of other goods, and change in consumers' income. Elasticity of demand क्या है? मांग की responsiveness है जब गुड की प्राइस में चेंज होता है, दूसरी गुड्स की प्राइसेस में चेंज होता है और कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है. There are different types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. What is price elasticity of demand? जब गुड की प्राइस में क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी परसेंटेज चेंज होता है. उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. और जब इनकम में परसेंटेज चेंज होता है, उसके कारण से क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है. जब रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में परसेंटेज चेंज आता है और उसके कारण से क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज आता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टुडे वी विल डू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Price elasticity of demand क्या है? It is a measure of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, other things being equal. जब अन्य बातें समान रहती हैं तो कीमत में परिवर्तन होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, प्राइस इलास्टिसिटी से हमें पता चलता है. डॉक्टर मार्शल डिफाइंस elasticity of demand may be defined as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. तो elasticity क्या है? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. यहाँ पे आपने क्या देखा है? Inverse का साइन. ये क्या बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है.
Now the formula for the price elasticity of demand, this is a percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Delta, this is known as delta. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? We can write in this form, change in quantity divided by Q into 100 divided by change in P over P into 100. 100 cancel हो जाएगा. We can write change in Q over Q into P over change in P. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अब देखो ये सेम फॉर्मूला है, चेंज इन Q ओवर Q इंटू P डिवाइडेड बाय चेंज इन P. प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, प्राइस फॉल कर जाती है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 20. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस चेंज इन Q. चेंज इन Q कैसे निकालेंगे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी इज 20, old quantity 10, and I have written this 10 here. Now change in P, new price minus old price. New price is 4 and old price, yeah, initial price is 5 minus 1. I have written here. Quantity, it's a 10 and I have written here price is 5. 10 cancel हो जाता है. Elasticity is minus 5. Demand is elastic. So demand can be elastic, demand can be inelastic. There are 5 degrees of price elasticity of demand. Number 1 is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, more than unitary elastic demand, and less than unitary elastic demand. We will do first perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand, prevailing prices पे डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटी होती है. When demand is infinity at the prevailing price. इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी? तो डिमांड विल फॉल टू 0. इट मीन्स नो वन विल बाय द प्रोडक्ट. और अगर थोड़ी सी प्राइसेस फॉल कर जाती हैं, देन व्हाट विल हैपन? All will buy. It will lead to infinity increase in demand. अब देखो prevailing prices पे demand can be 100, demand can be 200, demand can be 300. अगर prices increase करती हैं, then no one is going to buy. Demand will become 0. अगर prices fall करती हैं, all will buy. It will lead to infinity increase in demand. Elasticity is infinity. Next, perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand में क्या होता है? A change in prices causes no change in quantity demanded. प्राइस में तो चेंज हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. प्राइस 5 है, 10 है, 15 है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है. डिमांड इज 100. इलास्टिसिटी कितनी है? 0 है. ऐसे में डिमांड क्या है? नॉन रिस्पॉन्सिव है. प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता. इलास्टिसिटी इज 0. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होता है. इलास्टिसिटी इज 1. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिमांड कब कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो इसमें परसेंटेज चेंज और प्राइस में और परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है. एंड इलास्टिसिटी इज 1. मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. More than unitary elastic, percentage change in price है ये. This is a percentage change in quantity demanded. So percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. Elasticity is 1. प्राइस फॉल कर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो डिमांड क्या है? इट इज मोर रिस्पॉन्सिव. So percentage change in demand is more than percentage change in
price elasticity is more than 1. Less than unitary elastic, this is a percentage change in price, this is a percentage change in quantity demanded. So percentage change in demand is less than percentage change in price. क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज है ये कम है और प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. प्राइस में जब फॉल होता है क्वांटिटी इंक्रीज करती है बट क्वांटिटी में इंक्रीज बहुत कम होता है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. It was all about the degrees. Now, measurement of price elasticity of demand. First method is total outlay or total expenditure method. Second is proportionate or percentage method. Graphic method को हम दो पार्ट्स में करेंगे, point method and arc method, and then is the revenue method. First method is total expenditure method. This method is evolved by Dr. Marshall. In order to measure the elasticity of demand, it is essential to know how much and in what direction total expenditure has changed as a result change in price of commodity. जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, इससे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं. इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस चाहे बढ़ रही है, प्राइस चाहे कम हो रही है, बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी. ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करता है एंड टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस एज फॉल इन प्राइस. तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. नेक्स्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इसमें क्या है? सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है. अगर प्राइसेस फॉल करती हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा, अगर प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा. टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स as falls in price and total expenditure rises with rise in price. Now we will see the table. In first column is price of commodity, then quantity demanded, total expenditure, change in total expenditure, and elasticity of demand. What is total expenditure? For example, पेन की प्राइसेस 10 रुपीज हैं और मैंने एक पेन बाय किया तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 10 into 1, 10. पेन की प्राइसेस कम हो जाती हैं 9, मैंने 2 पेन्स बाय किए तो क्या होगा? 9 into 2, 18. अब आप देखिए मैंने नंबर्स लिए हैं प्राइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नंबर्स लिए हैं. यू कैन टेक एनी नंबर्स. क्वांटिटी परचेज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब देखो फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है? प्राइस इज 1, प्राइस इज 2, प्राइस इज 3, प्राइस इज 4. क्या हो रहा है प्राइस को? इट इज इंक्रीजिंग. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर? प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी जो है देखो कम हो रही है 10, 9, 8, 7. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर? 10, 18, 24, 28. Total expenditure rises with rise in price. Same direction है. Elasticity is less than unitary elastic. Next is 5, then 6, then 6. Price and quantity purchased is 5. Total expenditure remains same. It is elasticity is equal to 1. Total expenditure में कोई change नहीं है. Elasticity is equal to 1. Now price 7, 8, 9, 10. It is increasing. What is happening to total expenditure? 28, 24. What is happening? Total expenditure falls as price rise. कीमत के बढ़ने पर
टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इलास्टिसिटी क्या है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे आप देखो क्वांटिटी परचेज में कितना चेंज ज्यादा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल कम हुआ है, और टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा है। तो जहाँ पे चेंज ज्यादा है तो डिमांड इलास्टिक है, और इसमें डिमांड इन इलास्टिक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। प्राइस चाहिए है, प्राइस में चेंज हुआ है, पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस प्राइस पे हैं तो प्राइसेस क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर को क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, फॉल नहीं कर रहा। तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, मोर देन 1। प्राइस फॉल कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, प्राइस फॉल कर रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी ओवर क्यू इनटू पी ओवर चेंज इन पी। According to this method, percentage change in demand is divided by the percentage change in price. Price is 5, quantity 10, price 4, quantity 20. Already we have done it. कैसे calculate करना है change in Q? New में से new quantity में से हमें old quantity, then new price में से old प्राइस, इसको हमने ऐसे लिखा, और ये 10 क्वांटिटी एंड दिस इज अ पी प्राइस, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिमांड इज इलास्टिक। नाउ थर्ड मेथड इज अ पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड refers to elasticity at any point on the demand curve. ये आपके पास डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स on the slope of demand curve and the point at which measurement is made. Formula क्या है, lower segment of the demand curve divided by the upper segment of the demand curve. At A point, if we want to measure elasticity, तो हम क्या करेंगे, A point पे lower portion कितना है, A, C, और upper portion कितना है, A, F. तो दोनों portions, lower portion and upper portions, both are equal, elasticity is equal to 1. D point पे आप देखो, what is happening at D point? D point पे lower portion कितना है, D, C, और upper portion कितना है, D, F. Lower portion is more than upper portion, elasticity is more than 1. At B point, lower portion कितना है, BC, और upper portion कितना है, BF. Lower portion is less than upper portion, elasticity is less than 1. C point पे देखो, C point पे lower portion नहीं है, upper portion is CF. 0 divided by CF is equal to 0. At F point पे क्या हो रहा है, FC जो है वो लोअर पॉइंट है, लोअर पोर्शन है, और अपर पोर्शन 0 है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। सो फॉर्मूला क्या है पॉइंट इलास्टिसिटी का, अपर सेगमेंट को हमने ऊपर क्या आएगा, लोअर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट को किससे डिवाइड करना है, अपर सेगमेंट से। नेक्स्ट डायग्राम में आप सेम मैंने आपको दिखाया है, यहाँ मिडल में इलास्टिसिटी इज मोर देन इक्वल टू 1, ए पॉइंट पे मोर देन 1, बी पॉइंट पे लेस देन 1, और यहाँ पर 0, और इस पे इंफिनिटी, और फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। Now arc method. What is arc? Arc is the portion between 2 points on the demand curve. डायग्राम में क्या है, ए बी जो है वो क्या है, आर्क है। ये 2 पॉइंट्स हैं डिमांड कर्व पे, एंड इस पोर्शन पे आर्क है। हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी बिटवीन ए एंड बी पॉइंट? आपके पास फॉर्मूला
चेंज इन क्यू आपने वैसे ही रखना है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। जो नीचे का है आपका ये पार्ट, ये चेंज होगा। इसमें आपने क्या लेना है, न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, और इसमें आपके पास चेंज है न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2। ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है और आपका फॉर्मूला ये बन जाता है। नाउ वी विल कैलकुलेट। प्राइस इज 20, फॉल कर गई क्वांटिटी 50, और उसके बाद क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है 60। आई टोल्ड यू कि चेंज इन क्यू और चेंज इन पी वैसे ही कैलकुलेट करने हैं, न्यू में से ओल्ड, 60 माइनस 50। ऐसे ही प्राइस, न्यू प्राइस में से 10 माइनस ओल्ड प्राइस। कहां पर चेंज है, इस पार्ट में चेंज हो रहा है। आपने यहां पर क्या लेना है, पी और क्यू में एवरेज लेनी है, मींस दोनों क्वांटिटीज को, ओल्ड को भी और न्यू को भी प्लस किया है। ऐसे ही हमने ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस को प्लस किया है, और इसको आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हो एंड यू कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैन बी लेस देन 1, इलास्टिसिटी कैन बी मोर देन 1. It is you to calculate the elasticity. Now revenue method. What is revenue? जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचती है और उससे जो सेल प्रोसीड्स मिलते हैं, दैट इज अ रेवेन्यू. Sale proceeds that a firm obtains by selling its product is called its revenue. रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व कहा जाता है फर्म की, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, देन व्हाट विल हैपन, अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होने पर एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू, तो इलास्टिसिटी विल बी 1. वी कैन शो इट इन द डायग्राम. डायग्राम में आप देखिए, जब MR 0 है तो इलास्टिसिटी कितनी आ रही है, 1, और इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी इस पोर्शन में मोर देन 1 और इधर लेस देन 1. It was all about the measurement, not determinants of price elasticity of demand. There are many determinants of price elasticity of demand. We will explain all these determinants. Number 1 is nature of the commodity. Goods को हम 3 parts में divide करते हैं, necessary goods, comfort goods and luxury goods. Demand for necessary goods like salt, medicine क्या होती है, इनइलास्टिक. जब प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर उनकी क्वांटिटी में ज्यादा डिमांड नहीं करता अगर प्राइस फॉल कर जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉल्ट की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो हम सॉल्ट की डिमांड ज्यादा नहीं करते हैं. तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है. लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है. जब प्राइस में चेंज होगा तो लग्जरी गुड्स की डिमांड में चेंज होता है. कंफर्ट गुड्स की डिमांड कैसी होती है, इलास्टिसिटी कैसी होती है, क्लोज टू 1. सेकेंड डिटर्मिनेंट्स आपके पास है कि कितने सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में हैं. ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट, द ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा पाए जाते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी, अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो मैं क्या खरीदने लग जाऊंगी, कॉफी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, टी की डिमांड कम हो जाएगी. तो अगर सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं तो ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी. और वो गुड्स, वो कमोडिटीज जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है. Goods with different uses. Greater the number of uses a commodity have, greater will be its elasticity. For example, electricity, milk, इनके क्या हैं, इन प्रोडक्ट को हम कई यूजेस में
यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब इनकी प्राइसेस ज्यादा होंगी तो हम जो अर्जेंट नीड्स हैं, इनकी अर्जेंट यूज जो हैं, उसमें ही इसको हम यूज करेंगे। तो जिन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट यूजेस हैं, उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, goods whose demand can be postponed to a future period have elastic demand. जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नेक्स्ट ईयर अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है, तो ये डिमांड क्या होगी? इट विल इलास्टिक। और आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे आज भूख लगी है, दिस डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो क्या होगी डिमांड? इन इलास्टिक डिमांड होगी। जो डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, और जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, consumers having very high or very low income have inelastic demand. लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है, उनकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। जब प्राइस में चेंज होता है तो उनकी डिमांड पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। और जो मिडिल इनकम पीपल हैं, उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। प्राइस में जब इंक्रीज होता है तो उनकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन देयर डिमांड। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर दोज गुड्स इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक होगी उन वस्तुओं की मांग जिसके लिए कंज्यूमर क्या है? हैबिचुअल है या एडिक्टिव है। अगर मुझे कॉफी की हैबिट है तो कॉफी की डिमांड मेरे लिए क्या होगी? इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी। ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट, ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हमने इनकम का ज्यादा पार्ट, ज्यादा पोर्शन जो है खर्च कर रहे हैं, तो इलास्टिक क्या होगी? इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। और अगर हम उसका बहुत इनकम का बहुत स्मॉल पार्ट जो है वो खर्च कर रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, टूथपिक, सेफ्टी पिन, इन पर हम इनकम का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो खर्च करते हैं, इनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। और क्लोथ्स, फूड, रेंट, इन पे हम इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च करते हैं, तो इनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। अगर रेंट बढ़ जाता है तो आप दूसरा घर जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमारे पास है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हमारे पास आता है कि अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं या फिर बहुत कम प्राइसेस हैं, तो ऐसे में डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। इन गुड्स की प्राइसेस में चेंज होने पर इनकी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। और जो मीडियम प्राइस गुड्स हैं, जो ना तो बहुत एक्सपेंसिव हैं और ना ही बहुत चीप हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है? उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज टाइम, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। डिमांड टेंड्स टू मोर इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड देन इन द शॉर्ट पीरियड। अगर टाइम बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में कंज्यूमर्स क्या करते हैं? न्यू प्राइस के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, प्राइस के साथ एडजस्ट करते हैं या कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, तो डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है। और अगर बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक होगी। और प्राइस में अगर चेंज होगा तो कंज्यूमर या तो उसको नोटिस नहीं करता, उतना टाइम नहीं होता नोटिस करने का। तो इस तरह से जब शॉर्ट पीरियड होता है तो डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है, और लॉन्ग पीरियड में डिमांड इलास्टिक होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, goods demanded
jointly or complementary have inelastic demand. कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, आपको मालूम है ये जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. इनकी डिमांड जो है क्या होगी? इन इलास्टिक होगी. फॉर एग्जाम्पल, राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने पर उसकी डिमांड क्या नहीं होगी? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी इफ देयर इज नो फॉल इन द डिमांड फॉर कार्स. क्लियर हो गया? These were the determinants of price elasticity of demand. Price elasticity of demand का concept important है. किस तरह से important है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर क्या करता है? उसकी प्राइसेस जो हैं ज्यादा फिक्स करेगा, हाई प्राइसेस चार्ज करेगा. आपने देखा होगा कि सेम प्रोडक्ट आपकी फ्रेंड 400 में लाती है, आप 500 में लेकर आते हो, तो क्या है? जिन कंज्यूमर्स की डिमांड इन इलास्टिक है उससे जो सेलर है वो ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करता है. अगर आपने ज्यादा प्राइस दी है, इसका क्या मतलब है? कि तुम्हारी डिमांड इन इलास्टिक है. अगर आप कल को फाइनेंस मिनिस्टर बनते हो तो क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर बनते हो तो आप उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स को लेवी नहीं करोगे जिनकी डिमांड क्या है? इलास्टिक है. अगर आप उन पे करते हो तो आपको रेवेन्यू कम मिलेगा. इंटरनेशनल ट्रेड में भी प्राइस इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर इंडिया जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड उन कंट्रीज में क्या है? इन इलास्टिक है, तो इंडिया को बेनिफिट होगा उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को इंक्रीज करने पर. कई बार क्या होता है कि जो कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो इलास्टिक होते हैं और कुछ इन इलास्टिक होते हैं. अगर लेबर उन प्रोडक्ट्स को बना रहा है जिनकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है, ऐसे में क्या होगा? लेबर सर्विसेज की डिमांड भी इन इलास्टिक होगी और लेबर ज्यादा वेजेस की डिमांड कर सकता है. पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी. फूड ग्रेन्स की डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है. अगर फार्मर्स उनकी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? प्राइसेस कम हो जाती हैं और फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ पाती. These were the points of importance of price elasticity of demand. It was all about price elasticity of demand. Thank you.